Okay, so today's lecture is about search tips, about search tips on Google Scholar, Google News, different Google platforms, how to best utilize a search engine like Google, right? How to extract material for your projects, to extract material for your assignments, and how to get the updated information from Google, right? The problem with Google is it's not that Google doesn't have information, or we can't find information. The problem is it gives us too much information, and because it gives us, you know you type anything and it gives you millions of results, and it's impossible to browse all those millions of results, right? So in order to fix the problem, we need to make our search more efficient, right? So I'm gonna show you how we can do that. um, so I'm sharing a Google screen with you. All right. Okay, can you see it? Can you can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now the first thing is you type anything. Like I'm gonna type here, for example, job satisfaction, right? Or let's type student satisfaction. It relates with you more. Student satisfaction. Right. So we clicked. Now, if you look at this one, can you see this? Can you see this? How many results we've got? Screen थोड़ी बड़ी हुई है कि नहीं? अभी मैंने मैग्नीफाई किया है. Yes, sir. हो गई है. अच्छा हुई है, ठीक है. Okay, it's working then. कितने आपको रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे? Sir, 371 million. 371 million. I mean, obviously, it's simply unimaginable. You go 371 million तो दूर की बात है. 371 खाली 371 रिजल्ट्स भी आपको ब्राउज करना मुश्किल है. ठीक है ना? So there's fair possibility that the thing you are going to search might be on the 4th or 5th or 6th page. So people only browse the first page, right? And once the page is finished, I mean, some people might go on the second page, but generally people would not go on the second page. And those who are really, really, very engaged in the search, they might go on the 3rd or the 4th page. But hardly anybody goes on the 7th or 10th or 11th page. So, the point I made earlier is the problem is not that Google doesn't have information. The problem is that there is too much information and it is difficult for us to refine the information. Now, all I'm doing now, remember this figure, 371 million. All I'm doing here is I put codes, and now it's from 371 million, it is reduced to almost 3 million. So almost 28 million results are excluded. ठीक है? अच्छा, अब एक तो पहली टिप 1 ये है कि when you used different, for example ये मैं कह रहा हूँ कि student satisfaction with online learning, right? जब मैं इसको
के बगैर कर रहा हूँ ना, इन्वर्टेड कॉमर्स जो, तो आप देखिए कि मेरे पास जो टोटल रिजल्ट्स आए हैं वो कितने आए हैं, 132 million, right? The moment I put code, I reduced to 46,800 only. Now, how does Google work? You know, if you do not put code, it is going to search each word. It's going to search student, it's going to search satisfaction, you know, separately, online, and then learning. However, when you put code, it search the whole phrase. ठीक है, ये सारा फिक्रा जो है ना वो फिर सर्च करेगा। अच्छा, जब ये सारा फिक्रा, अब आप देखें कि योर सर्च इज मोर फोकस्ड. This is what you intended to search, right? You didn't want to search online. Online, I mean, there could be so many different websites which contain the word online, and they might not be related with student satisfaction, right? But when you put it in the quotes, then it is going to be more focused, right? So the first step is use quotes. ठीक है, अब आप कहाँ कहाँ पे यूज कर, फॉर एग्जाम्पल आप ये भी कह सकते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक डेफिनेशन कहीं से ढूंढनी है, किसकी, इंटेलिजेंस की, तो मैं कहता हूँ इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज, अब ये पूरा फिक्रा इसी तरह ढूंढेगा। अब आप देखें कि आपको जो रिजल्ट्स आए हैं ना, ये सारे के सारे इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज, ये पूरा पूरा फिक्रा लिखा हुआ है, ठीक है, आगे डेफिनेशन लिखी हुई है। Intelligence is defined as having objective significance. Intelligence is defined as intelligence on any subject that may be used as reference, blah blah blah. तो आप ये देखें कि आप अगर, अब मैं ये आपको एग्जैक्ट डेफिनेशंस मिल रही, अब मैं ये हटाता हूँ, कोट्स हटाता हूँ और दोबारा सर्च करता हूँ। आप देखें पहला रिजल्ट क्या है, डिक्शनरी, what is intelligence, right? So you're not interested in the dictionary definition. Then, you know, there's a lot of questions, then Wikipedia, then, you know, there are definitions from the other dictionaries and encyclopedias. This is not what you want. You want it from an academic source, right? और total results आए हैं यहाँ पे दोबारा 442 millions, right? Obviously, it's very difficult to browse, as I said earlier, 400 million results, right? So simply by using a very simple tip, putting a code, right, it makes your search much more efficient. Okay, search one ho gaya, tip one. Okay, then we move on. अच्छा, एक और चीज आप समझें पहले कि सर्च आपने गूगल पे नहीं करनी, पहले सर्च का प्लान आपने अपने दिमाग में बनाना है कि आपने सर्च करना क्या है, क्या डेफिनेशन ढूंढनी है, तो आपको किस तरह के वर्ड्स यूज किए जाने चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज, अगर आप यही लिखें डेफिनेशन इंटेलिजेंस तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप कोर्स में भी डाल दें, क्योंकि बुक्स में ऐसे नहीं लिखा होता कि डेफिनेशन और आगे लिखा हो इंटेलिजेंस। Generally, it is used like this. Intelligence is defined as this. You know, poverty is defined as this, right? So use the expression that is generally used in the books or articles, right? Second, quotes के बाद दूसरी चीज ये कि आप एडवांस्ड सर्च ऑप्शंस को देखें, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं थोड़ा इसे छोटा करता हूँ, ठीक है, आपको ये नजर आ रहा है टूल्स, टूल्स नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। अगर आपको नहीं नजर आ रहा, मैं थोड़ा मैग्नीफाई करता हूँ। अब देखिए, जब भी आप गूगल क्रोम में सर्च करते हैं, आपको ये आपको नजर आता है टूल्स, टूल्स पे आप क्लिक करें, ये आपके पास आ जाती हैं एडवांस सर्च ऑप्शंस। ये आपसे पूछता है कि आप कब सर्च करना चाहते हैं, पाकिस्तान से या एनी कंट्री। इफ यू क्लिक पाकिस्तान, इट वुड ओनली प्रोड्यूस रिजल्ट फ्रॉम पाकिस्तान।
एनी टाइम नो, पास्ट 24 आवर्स। फॉर एग्जांपल आपने कोई खबर ढूंढनी है कि जनाब पता चला है कि गवर्नमेंट का कोई बंदा जो है ना, गवर्नमेंट ने कोई मेजर चेंजेस किए हैं, तो आप उधर लिखते हैं चेंजेस इन द मिनिस्ट्री, तो वो पिछले साल की भी खबरें दे देते हैं, उससे पिछले। आप इधर पास्ट 24 आवर क्लिक कर दें, it would only produce results, you know, posted in the last 24 hours, right? So even the advanced option is go to the custom range. अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आपने पहले खुद दिमाग से अपने सोचना है कि रिसर्च करनी कैसे। आपने सोचा कि जनाब इकोनॉमिक रिसेशन जब आया था, या आप फॉर एग्जांपल कोविड पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, कोरोना पे, आप इसके इकोनॉमिक सोशल इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं। अब आपने देखना यह है कि जो पहले से पैंडेमिक आए थे उनमें लोगों के क्या रिस्पॉन्सेस थे। तो हमें पता है कि पैंडेमिक एक आया था स्वाइन फ्लू 2008 से लेकर 2010 तक। आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे 2008 से लेकर 2010 तक रिजल्ट्स थे, और ये रिजल्ट्स उसमें हो, इन रिजल्ट्स में पैंडेमिक सोशल इम्पैक्ट, ठीक है ना। और अच्छा, अब अगर आप ये देखें ना, इधर सारे के सारे आपको जो रिजल्ट नज़र आ रहे हैं 2009, 2010, 2009, 2009, 2009। अब इस दौर में ये सारे आर्टिकल जिन दिनों में कोई इशू सरफेस हुआ हो, उस ज़माने के सारे रिजल्ट्स आपके सामने आ जाते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा सारे के सारे यानी अननेसेसरीली आपको ब्राउज नहीं करना पड़ता, बहुत सारे डिफरेंट ईयर्स में नहीं आपको जाना पड़ता। योर सर्च में बी वेरी फोकस्ड ऑन द डेट्स विच आर रेलेवेंट टू योर रिसर्च, ठीक है। इसी तरह आप अगर फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं कि ट्विटर कैंपेनिंग कैसे होती है ड्यूरिंग इलेक्शन, तो अगर आप आज उसे देखेंगे तो आपको डिफरेंट ट्रेंड नज़र आएंगे। जब आप अगर आप इलेक्शन डेट्स दे दें यहाँ पे, यानी उस इलेक्शन से 6 महीने पहले से लेकर इलेक्शन तक की डेट्स यहाँ पे दे दें, अब आपके पास एग्जैक्टली उस दौर के रिजल्ट्स आ जाएंगे जिस टाइम पे ये सारा कुछ हो रहा था, ठीक है। तो दूसरा टिप 2 ये है कि डेट्स का यूज़ करें, और इसी तरह कुछ और आइडियाज़, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि नहीं मुझे 1960 से लेकर 1970 तक, यानी 40-50 साल पीछे चले जाएं, और इधर आप लिखें कि ट्रेनिंग इज डिफाइंड एज, और देखें कि 1960 से 1970 तक क्या ट्रेनिंग की डेफिनेशन की जाती थी और आज क्या की जाती है और क्या चेंज आया है। यानी आप अपने लिटरेचर रिव्यू में ये चीज़ें लिख सकते हैं कि देखिए पहले इस तरह डिफाइन किया जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग हैज़ बीन चेंज्ड एंड नाउ पीपल डिफाइन ट्रेनिंग इन अ डिफरेंट वे। फिर आप पहले ये सर्च करें, दूसरा आप इसे कहें कि 2015 से लेकर 2019 तक ट्रेनिंग की डेफिनेशन बताएं। अब दोनों डेफिनेशन में आप फ़र्क भी कर सकते हैं, उन्हें कंपैरिजन कर सकते हैं, और इससे आपका लिटरेचर रिव्यू भी बड़ा क्रिटिकल बन जाएगा, ठीक है ना। इट्स कंपैरेटिव, इट्स एवेल्युएटिव, इट्स more critical, right? So tip 2 is use dates, right? फिर आप देख सकते हैं इस सेटिंग्स में जाएं, अगर आपको ये पहला आइकॉन नजर आ रहा है सर्च सेटिंग्स, राइट? So you click here, यहाँ पे अगर आप कोई चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे इकट्ठे एक एक पेज पे 100 रिजल्ट्स आ जाएं, आप यहाँ पे अपनी ऑप्शंस, लेकिन जो चीज़ में आपसे यहाँ पे आप रीजन सेट, अपना रीजन सेट कर सकते हैं कि वो आपको सबसे पहले, अगर आप पाकिस्तान है बाय डिफ़ॉल्ट करंट रीजन हुआ होता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप पाकिस्तान सेट करें और आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो सबसे पहले पाकिस्तान के रिजल्ट्स देगा।
अच्छा जी। Then comes searching. Tip 3, searching on a particular website. मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि ILO की वेबसाइट पे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे आप पाकिस्तान से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करें, ठीक है, या बिजनेस रिकॉर्डर में आप पता करें नेस्ले की सेल कितनी है। आप जनरली सर्च करते हैं, आपको शायद उतने फोकस रिजल्ट्स नहीं मिलते, या कई दफ़ा ये होता है कि कई दफ़ा जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो दे आर नॉट फ्रॉम वेरी ऑथेंटिक सोर्सेज, राइट? सो यू नीड results from authentic sources. So what we can do, Google also help us in searching from a particular website. For example, we are going to write here, let's say anything, women empowerment, और ये मैं कहता हूँ कि women empowerment और ये कॉमा भी नहीं पहले होता, साइट कॉलन www.ilo.org, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट। अब मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब आप देखें कि जो सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, बल्कि इसे ख़त्म कर देते हैं, एनी टाइम कर देते हैं। 16,200 results, they are all from ILO website, ilo.org, ilo.org, ILO, ये आप सारे देखते हैं, यूथ एंड वुमेन। और अब आप, क्योंकि हमें पता है ILO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अच्छी स्टडीज़ करवाई होती हैं, हमारे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट्स आएंगी, इसलिए हमने ये डिसाइड किया, ऑल यू हैव टू डू वुमेन एम्पावरमेंट एंड देन राइट द वर्ड साइट कॉलन एंड देन वेबसाइट एड्रेस। अगर आपको वेबसाइट का एड्रेस एग्जैक्ट पता नहीं है तो सबसे पहले आप वैसे गूगल में जाके इधर लिखें ILO, ठीक है, वेब एड्रेस ILO का ज़ाहिर इधर आ जाएगा, ये आ गया, यहाँ से आप कॉपी करें एड्रेस, ठीक है, पहला वाला हिस्सा ही बेहतर है कि पहले वाला हिस्सा, और यहाँ पे आप आके पेस्ट कर दें। अब कोशिश करें कि डोमेन तक, ये आगे जो एक्सटेंशन है ना, ये ना इसमें पेस्ट करें, वरना आपके रिजल्ट्स जो है ना वो कम हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। और इससे आप करें, प्रेस करें, एंड देन यू विल गेट ऑल दीज रिजल्ट्स। अब इसको मैं दोबारा थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। टिप नंबर 1 कोट्स वाली जो थी, और इसको मैं कंबाइन कर रहा हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट को मैं कोट्स में कर रहा हूँ, और उसे कहता हूँ ये कोटेड टेक्स्ट जो है ये सर्च करना है, कहाँ से? ILO की वेबसाइट से। And there you go. Now you can see from 16,000 results, it is reduced to 3,400 results only. And all are now specifically on women's empowerment, right? आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे भी सर्च कर सकते हैं, आप एक स्पेशली फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने BBC की वेबसाइट से कोई चीज़ सर्च करनी है, ठीक है, CNN पे सर्च करनी है, या आप कहते हैं मैंने डॉन में द न्यूज़ पे, बिजनेस रिकॉर्डर, कोई किसी ख़ास अखबार से आपने कोई ख़बर लेनी है, आप सिंपली ये करेंगे, उस वेबसाइट का यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, अपनी मर्ज़ी का जो चीज़ आपने सर्च करनी है वो इधर देंगे पहले पार्ट पे, ठीक है, और आप उसे सर्च कर लें, और इंशाल्लाह यू विल गेट वेरी specific and refined results, right? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज ये है कि आप लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट्स आप की इस सर्च के लिए सूटेबल है। उसके लिए आपने पहले ज़्यादा से थोड़ी सी सर्च करनी है, ठीक है, जो भी सूटेबल है उस है। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि जी कि हम डायरेक्टली क्यों ना ILO की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे भी सर्च बटन बना होता है, तो वहाँ क्यों ना सर्च कर लें, गूगल में क्यों करें? तो इसका आंसर यह है कि बहुत सारी वेबसाइट्स जो सर्च
बटन यूज़ करती हैं वो सर्च इतना कई तो गूगल का ही सर्च यूज़ करती हैं, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनकी सर्च बहुत इफेक्टिव नहीं है। आप बेशक किसी डॉन की अपनी वेबसाइट से कोई लफ्ज़ सर्च करके देख लें और फिर से गूगल पे सर्च करके आपको फ़र्क का अंदाज़ा हो जाएगा कि गूगल सर्च इज़ मच मोर इफेक्टिव, राइट? सो आई वुड प्रेफर to search on Google instead of searching on that very website. Now then comes okay, so another tip is using static. ये जो static है ना, ये static का मतलब होता है गूगल में फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहते हैं, आप कहते हैं कि जॉब ट्रेनिंग एंड, अब आप देखना चाहते हैं कि जॉब ट्रेनिंग के साथ लोगों ने कौन कौन से वेरिएबल स्टडी किए, तो अब आप अगर इधर जॉब ट्रेनिंग एंड सेटिस्फैक्शन लिख देंगे तो सिर्फ सेटिस्फैक्शन के रिजल्ट्स देगा। आप यहाँ पे कमिटमेंट लिख देंगे, कमिटमेंट के रिजल्ट्स देगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, जॉब ट्रेनिंग एंड सेटिस्फैक्शन की बजाय आप स्टैटिक डाल देते हैं और इसे कोट में कर दिए। अब ये क्या सर्च करेगा, जॉब ट्रेनिंग एंड सोशल लर्निंग थे, जॉब ट्रेनिंग और एंड के बाद कोई भी लफ्ज जो आया ना वो ये सर्च कर लेगा। स्टैटिक मींस एनीथिंग, ठीक है? स्पेशली जो आप गूगल स्कॉलर पे सर्च कर रहे हैं तो आपको बड़ा हेल्पफुल होगा। ये मैं साथ आपको गूगल स्कॉलर खोलता हूँ। अब ये देखें, आपको बता रहे जॉब ट्रेनिंग एंड फॉर्मल स्कूलिंग, जॉब ट्रेनिंग एंड अर्निंग, जॉब ट्रेनिंग एंड सेटिस्फैक्शन। तो कई दफ़ा ये होता है कि आपका किसी एक खास वेरिएबल में इंटरेस्ट होता है और आप ये चाहते हैं कि मैं पता करूं लिटरेचर से कि लोगों ने और कौन कौन से वेरिएबल इस पर स्टडी किए। ये आपको बड़ा एक हेल्पफुल टूल है। एक वन सर्च वन गो में आपको पता चल जाता है कि लोगों ने क्या क्या इसके रिलेटेड जो है ना सर्चेस की हैं या डॉक्यूमेंट की हैं चीज़ें, राइट? सो स्टैटिक, use static, right? आप in between the different, between different words, and for example आप job training की बजाय मैं इधर लगाता हूँ static, job training and job satisfaction। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि जॉब कौन कौन सी चीज़ों का satisfaction पे impact, satisfaction, okay, so job performance की बजाय मैं इधर लिख देता हूँ static, ठीक है? और अब इसको सारा कर देता हूँ कोट में, कोट्स एंड देन सर्च, एंड यू कैन सी नाउ जॉब क्वालिटी एंड जॉब। अब जो पहले वाले हिस्से में आ गए हैं, जो एंटीसीडेंट्स हैं, जो रीजंस हैं जॉब सेटिस्फैक्शन की, उनके बारे में हमें पता चल गया इस सारी सर्च प्रोसेस में। ठीक हो गया? अच्छा जी, मूविंग ऑन। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी। कोट्स को कैसे यूज़ करना है, स्टैटिक कैसे यूज़ करना है, डेट्स कैसे यूज़ करनी है, और एक किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से कैसे सर्च करना है। अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये सारी चीज़ें, आप कहते हैं मुझे जॉब सेट, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने एडमिशन इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है कॉमसेट की वेबसाइट, तो आप कहते हैं BBA, ठीक है, या आप कहते हैं स्कीम ऑफ स्टडीज, आप अपनी स्कीम ऑफ स्टडीज देखना चाह रहे हैं, अपने बाहर कहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं स्टडीज़ के लिए, उन्होंने कहा जी अपनी स्कीम ऑफ स्टडीज़ दें, ठीक है?
और मैं कहता हूँ स्ट्रीम ऑफ स्टडीज, इतना हिस्सा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखता हूँ। अब इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर लिखता हूँ कॉमसेट्स, इसलिए कि अगर आप इधर ही लिख देंगे अंदर तो नॉर्मली ये कहीं पे भी नहीं लिखा होता। जब कॉमसेट की वेबसाइट है तो अंडरस्टूड होता है कि ये कॉमसेट की है, तो कहीं पे ऐसे नहीं लिखा होता स्कीम ऑफ स्टडीज कॉमसेट्स। ठीक है, तो कॉमसेट्स को इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर, और फिर आगे मैं लिख दिया साइट, और इधर लिख दिया CUI.edu.pk, और आप कहते हैं मैं सर्च करता हूँ। अच्छा, ये कोई नहीं रिजल्ट आया, ये चेक करते हैं वेबसाइट का। CUI लाहौर, अब ये देखिए, मतलब स्पेसिफिक रिजल्ट, एक ही रिजल्ट आया है, स्टूडेंट हैंडबुक का है, वो आपको बता रहा है कि स्कीम ऑफ स्टडी, जिसमें लफ्ज़ लिखा हुआ है स्कीम ऑफ स्टडीज़ कॉमसेट्स। अच्छा, अब मैं ये मेरा हाल है वो सेंट्रल इस्लामाबाद का है, कॉमसेट्स के साथ है, comsats.edu.pk। अब आप देखें बिल्कुल CEIT कोर्स कैटलॉग, स्कीम ऑफ स्टडी, एग्जैक्टली आपको उस पॉइंट पे ले गए, बजाय इसके कि आप ढूंढते रहते और वो गूगल में मतलब 10-15-20 मिनट बाद जाके आपको कोई चीज़ मिलती। एग्जैक्ट, इट टेक्स यू एग्जैक्टली देयर। ये लफ्ज़ आप देखें, स्कीम ऑफ स्टडीज, आप इसे ओपन करें, मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये PDF डॉक्यूमेंट आपके सामने आ गया, और ये एग्जैक्टली आपको स्कीम ऑफ स्टडीज पे ले गया, पोर्टल पे ले गया, इधर से आपको स्कीम ऑफ स्टडीज पता चल सकती हैं। ठीक है, तो सारे जो रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं ये बड़े स्पेसिफिकली वही चीज़ है जो आप सर्च करना चाह रहे हैं। ये देखिए आ गए, यहाँ पे आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, ये सेलेक्ट करें, एंड को और प्रोग्राम सेलेक्ट करें, और आपको स्कीम ऑफ स्टडीज़ आपके सामने आ जाए, सर्च द स्कीम ऑफ स्टडीज़। ठीक है, तो आप एक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, किसी कंपनी की वेबसाइट, इसी तरह बहुत सारे लोग आते हैं, वो पूछते हैं, वो कहते हैं जनाब वो हमें तो डेटा मिलता ही नहीं है, मैंने नस्ले पे प्रोजेक्ट करना था, मैंने फलां पे प्रोजेक्ट, मुझे उसकी सेल का नहीं बिल्कुल पता चल सकता। अब मैं कंबाइन कर रहा हूँ पिछली टिप्स को ना। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जनाब नंबर 1 मुझे चाहिए नेस्ले पाकिस्तान सेल्स, ठीक है, और ये मैं कहता हूँ कि कब चाहिए, ये होना चाहिए डॉक्यूमेंट बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे लास्ट 1 ईयर का चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, या अगर मैं 2 साल पहले का ढूंढना चाहता हूँ तो मैं वो वाली डेट्स दे दूँगा। ठीक है, यानी इधर मैं फर्ज कर मैं लास्ट 1 ईयर, और मैं कहता हूँ कि ये 1 साल हो, और उसके साथ साथ ये मैं businessrecorder.com की वेबसाइट से देखना चाहता हूँ। अब आपके पास आ गया नेस्ले रिपोर्ट्स रेवेन्यू ऑफ 87 बिलियन 30 अक्टूबर 2019। सारे रिजल्ट्स 2019 के बाद के हैं, आखिरी साल के हैं। पिछले 6 महीने की नेस्ले में कितनी सेल है वो आपके पास सामने आ गया, पिछले 3 महीनों में कितने की सेल है उस पर एक खबर आ गई है। ठीक है, उसके बाद आप देखें नेस्ले कन्फर्म्स आउटलुक ऑफ Q1 पहले क्वार्टर की सेल जो है। ठीक है, नेस्ले 9 मंथ सेल्स डाउन वगैरह वगैरह। अच्छा, इसमें एक और लफ्ज़ ऐड किया जा सकता है, आप बिजनेस रिकॉर्डर से ज़्यादातर पाकिस्तान के रिजल्ट्स होंगे, लेकिन अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट फॉर एग्जांपल CNN, और आप उसमें लफ्ज़ पाकिस्तान भी ऐड कर सकते हैं, उससे आपको ज़्यादातर रिजल्ट्स पाकिस्तान के मिलेंगे। वायरस स्टॉक फाइलिंग डिस डाइवेस्टमेंट बूस्ट नेस्ले रिजल्ट्स अप्रैल 25, बड़ा रीसेंट आर्टिकल। तो आप नेस्ले पे सर्च करें, आपको बड़े रीसेंट आपको डेटा मिलेगा, आपको स्पेसिफिकली आपके टॉपिक पे मिलेगा। ठीक है, और आप उसे करंट कोविड सिचुएशन से, फॉर एग्जांपल आप उसे करंट सिचुएशन के साथ रिलेट कर सकते हैं, और बड़ा इफेक्टिव आपकी रीजनिंग बन जाएगी जब आप लिख रहे होंगे। ठीक है, तो डिफरेंट सर्च टिप्स को आप कंबाइन भी कर सकते हैं पर्टिकुलर वेबसाइट। अब ये सिर्फ देखें ना, बिजनेस रिकॉर्डर की वेबसाइट पे आपको नेस्ले पाकिस्तान सेल्स जब मैं लिखता हूँ तो उस पर 1340 रिजल्ट्स आए हैं। वो लोग कहते हैं हमें डेटा मिलता नहीं, डेटा इज देयर, इट्स ओनली वी डू नॉट नो हाउ टू सर्च दैट, राइट। सो नेक्स्ट हम जा रहे हैं जी गूगल न्यूज़ सॉरी,
गूगल न्यूज़, अगर आपने कभी पहले सर्च नहीं किया तो एनीथिंग लाइक, मैं कहता हूँ सैमसंग सेल्स ग्रो, ठीक है, और मैं कहता हूँ जी ये मुझे विकिपीडिया से ना बताओ बल्कि ऑथेंटिक न्यूज़पेपर सोर्सेज। अब आप कई टीचर्स, आपने मुझे कई दफ़ा स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया कि जी हमें कुछ टीचर्स ने कहा है कि न्यूज़पेपर का जो रेफरेंस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए हर सब्जेक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कई बिजनेस के हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सिर्फ न्यूज़पेपर से मिल सकती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल किसी की सेल्स के बारे में, किसी की ग्रोथ के बारे में, मार्केट शेयर के बारे में, तो ऐसे केस में अगर आप कोई ऑथेंटिक न्यूज़पेपर एजेंसी को रेफर करें, फॉर एग्जांपल बीबीसी है, ऑथेंटिक है, सीएनएन है, इंडिपेंडेंट, गार्डियन, बिजनेस रिकॉर्डर है, पाकिस्तानी है, ठीक है, तो आप ये बड़ी कंपनीज हैं, या आप डेफिनेटली इन्हें रेफर कर सकते हैं कम अज़ कम बिजनेस सब्जेक्ट्स में। कई सब्जेक्ट्स में ज़रा ये वीक सोर्स समझा जाता है, लेकिन स्टिल अगर एक से ज़्यादा सोर्सेज में ये चीज़ आ रही है तो कंफर्म हो जाती है कि ये ऑथेंटिक है, ठीक है। अब ऊपर आप ये देखें न्यूज़ का, आप जो ही न्यूज़ क्लिक करें आपको अब ये सारी की सारे जो सैमसंग के सेल्स के बारे में जो चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी न्यूज़पेपर से आ रही हैं, ठीक है। सैमसंग न्यूज़ रूम यूके, वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। अब न्यूज़ में भी आप वो सारी सर्च टिप्स जो मैंने आपको पहले बताई हैं जनरल गूगल पे, वो इस पे, यानी इस पे आप इन्वर्टेड कॉमर्स में कर सकते हैं। ये जैसे मैं कर, ये देखें 287,000 रिजल्ट्स हैं, तो ये मैं कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली मुझे जहाँ पे सेल ग्रोथ हुई है वही बताए। तो ये 2,87,000 से कम होके वो हमारे पास एक अच्छा, इसका मतलब सैमसंग सेल, अच्छा नहीं, ये the word, you know, the order of the words is not right, so what we do Samsung sale, और ये मेरा ज़्यादा अच्छा, हाँ ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ गए, 805, राइट। इसमें मैं अगर पाकिस्तान भी ऐड कर दूं तो ये अब मेरे पास पाकिस्तान के रिजल्ट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है जी गूगल बुक्स, राइट। If you click on more, you can see here an icon, books, right? So click on Google Books. और मैं ये कह रहा हूँ, अब ये देखें, मैं ये कह रहा हूँ गूगल बुक्स में कि मुझे कंज्यूमर बाइंग, राइट, एंड आई पुट इट इन कोड्स, और मैं कहता हूँ ये मुझे कहाँ से, जिसमें लफ्ज़ पाकिस्तान भी हो, और मुझे किसी बुक से सर्च करके बताए। ओके, बाइंग के स्पेलिंग में हाँ गलत है, ओके, या फॉर एग्जांपल कंज्यूमर बिहेवियर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर पाकिस्तान। अब आप देखें कि यहाँ पे जो जितने भी रिजल्ट्स आए हैं ना गूगल बुक्स में, ये वो हैं फॉर एग्जांपल, जिसमें फॉर एग्जांपल ये कंज्यूमर बिहेवियर की बुक है, ठीक है, वो कहते हैं 247 पेज पे पाकिस्तान और इंडिया का तस्करा है कि यंग पीपल, young India, in some parts of India and Pakistan, young couples are expected to marry partners chosen by their parents and blah blah blah. Consumer behavior सेज पब्लिकेशन है, पेज जिस पे कहता है जी, ये अगेन पाकिस्तान का तस्करा है इसमें। तो अब
इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास अगर कोई बहुत अच्छी लाइब्रेरी भी है, आपके लिए ये बड़ा मुश्किल है पता करना कि इस लाइब्रेरी के किस सफ़े किस बुक के किस सफ़े पे के अंदर पाकिस्तान के बारे में कुछ लिखा हुआ है. ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट? सो इन गूगल books, what you can do, you can not only search in the Google window, but also you can open the book, right? And you can search within the book. So यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लफ्ज़ ये देखें एग्जैक्टली मुझे उधर ले आया जहाँ पे पाकिस्तान से रिलेटेड है चीज़ें लिखी हैं. आपको जनरली आपकी असाइनमेंट में पूरी की पूरी किताब नहीं लिखनी होती, एक दो पैराग्राफ्स लिखने होते हैं. अब कई दफ़ा प्रॉब्लम ये होता है गूगल बुक्स में कि फुल एक्सेस नहीं होती. कुछ चैप्टर्स अवेलेबल होते हैं, कुछ नहीं होते. कई में बिल्कुल ही कोई नहीं होता चैप्टर अवेलेबल, और कई बुक्स में गूगल बुक्स में फुल बुक अवेलेबल होती है. लेकिन अगर आपको एक दो तीन चार पैराग्राफ्स भी अवेलेबल हैं जो एग्जैक्टली आपसे रिलेटेड हैं, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है. आप अपने चीज़ें सर्च कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं अपने टॉपिक के साथ. लेकिन आपने जिस बुक से भी आपने लिखना है उसका आपने प्रॉपर रेफरेंस देना है, उसके प्रॉपर साइटेशन देनी है. उसकी इंफॉर्मेशन आपको जब आप यहाँ पे लिखते हैं अबाउट दिस बुक, आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे साइटेशन की सारी डिटेल मिल जाती है उस बुक की. ये देखें यहाँ पे आपको लिखा होगा ये बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन. बिब्लियोग्राफिक मीन साइटेशन और रेफरेंसिंग इंफॉर्मेशन. ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी है कि ऐसे आपने साइट करना है. ठीक है. बुक्स इसलिए भी बड़ी यूज़फुल हैं कि बुक्स में आमतौर पर डेफिनेशंस होती हैं. आप किसी चीज़ के बारे की डेफिनेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि कंज्यूमर let's say behavior is defined as, और आप कहते हैं मुझे किसी बुक का रेफरेंस ताकि ऑथेंटिक लगे मैंने किसी बुक से लिखा है, राइट? तो अब ये देखें एग्जैक्टली आपको इतनी सारी बुक्स के आ गए हैं. अकॉर्डिंग टू दिस गाय कंज्यूमर बिहेवियर इज डिफाइंड एज दिस, राइट? अनदर बुक consumer behavior is defined on this. Consumer behavior is defined as the configuration of thoughts, feelings, and activities involved in the process of acquiring blah blah blah. अब आप देखें कि आपको exactly books से आपको result आपको ये मिल रहे हैं, और books authentic books से आप definitions ले रहे हैं. आप different दो तीन definitions इधर cite कर सकते हैं, उन्हें compare कर सकते हैं, जिससे आपका राइट अप बड़ा इफेक्टिव हो सकता है. फर्दर आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप कहते हैं जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आप कहें जी पहले आप 1960 से पहले वाली बुक्स का देखें उधर क्या डेफिनेशन लिखी है, और फिर करंट देखें और आप देखें कि कोई चेंज आई है ओवर द पीरियड, कोई चेंज आई है बुक्स में. द वे पीपल डिफाइन कंज्यूमर बिहेवियर, इज इट चेंज्ड और इज इट द सेम, राइट? Okay, so Google Books का भी आपको पता चल गया, ये भी आपको पता चल गया. You can search within the book, right? ये भी आपको पता चल गया कि you can use different tips we discussed earlier, you know, like inverted commas, dates, and everything. You can use all those tips in Google Books, right? Okay, then comes Google Scholar, right? So I'm moving to Scholar. It's pretty much same. The only thing is it's specifically meant for searching academic sources, right? So let's start with anything like life satisfaction, right? So life satisfaction.
let's say you want to search a scale of life satisfaction, right? Scale is a questionnaire, right? The question you want to use, validated question you want to use in your research. For example, आप लाइफ सेटिस्फैक्शन मेजर करना चाहते हैं तो आप अगर खुद से क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप वो क्वेश्चन इतने ऑथेंटिक हों कि वो वाकई ही लाइफ सेटिस्फैक्शन मेजर करें। तो आप ये कहते हैं कि ऑलरेडी लोगों ने जो लिटरेचर में सर्च किया हुआ है, लोगों ने डॉक्यूमेंट किया हुआ है, इसको स्टडी किया हुआ है, मैं उन्हीं में से किसी एक के क्वेश्चंस ले लूँ। उन क्वेश्चंस को कहते हैं स्केल, राइट? सो लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि लाइफ सेटिस्फैक्शन स्केल, ठीक है। ये आपके पास सर्च आ गई, students life satisfaction scale, students life satisfaction scale, children life satisfaction। आप इसे फर्दर स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये आप खोलेंगे, आप कोई सा भी लिंक इनमें से अक्सर फिर पूरा स्केल वहाँ पे लिखा होगा, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इस स्केल को अपनी रिसर्च के लिए, राइट? रिसर्च प्रपोजल के लिए। Again, you can put it in the codes like I'm doing that, life satisfaction, and then a scale I just deliberately kept outside, from 852,000. We've got now 852,000 results, which are much less. अच्छा, अब मैं इससे दोबारा पूरे के पूरे को करता हूँ। अब देखें 13,400 रिजल्ट्स और कितने कम हो गए। अब मैं कहता हूँ कि लाइफ सेटिस्फैक्शन इज मेजर्ड, स्केल मेजरमेंट के लिए यूज होता है ना, तो कई दफ़ा ऐसे लिखा जाता है लाइफ सेटिस्फैक्शन इज मेजर्ड यूजिंग दिस स्केल, तो मैं इतना ही लिखता हूँ। अब अगर आप देखें तो मेरे पास सिर्फ 900 रिजल्ट्स आ गए, और एग्जैक्टली लाइफ सेटिस्फैक्शन इज मेजर्ड ओवर अ रेंज ऑफ दिस। लाइफ सेटिस्फैक्शन इज measured by Clarion's classic measure है। तो जहाँ पे स्केल का लफ्ज नहीं भी है, ये लाइफ सेटिस्फैक्शन इज measured by a single question rated on 0 to 10 numerical scale, right? लाइफ सेटिस्फैक्शन इज measured this। तो अब डिफरेंट वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, स्केल भी यूज कर सकते हैं, और इसे कोट्स में भी डाल सकते हैं। और उसके आगे अब यहाँ पे आपको मैं कुछ और, जो सिर्फ गूगल स्कॉलर्स में जो सर्च टिप्स, आप यहाँ पे अगर जाएं गूगल स्कॉलर को देखें तो आपको ये आपको नज़र आ रहा है एडवांस सर्च। यहाँ पे ये जो 3 लाइंस है ना लेफ्ट साइड पे, इस पे आप क्लिक करें, यू कैन सी एडवांस सर्च, राइट? और यहाँ पे आपके पास वो सारी, वो कहते हैं एग्जैक्ट फ्रेज सर्च करना है। मैं कहता हूँ एग्जैक्ट फ्रेज के साथ साथ जॉब का लफ्ज़ भी इसमें सर्च करो। लेकिन इसमें आप कहते हैं फर्दर, आप कहते हैं कि जनाब मैं जो है ना ये आर्टिकल सिर्फ मुझे वो वाले दे, लाइफ सेटिस्फैक्शन वाले, लाइफ सेटिस्फैक्शन, और आप कहते हैं जनाब जो कि लेट्स से कमर ने लिखे फॉर एग्जांपल, ठीक है। और अब ये मैंने सर्च क्लिक कर दिया। अब ये देखें कि सारे के सारे आर्टिकल वो आ रहे हैं। यहाँ पे मैं लाइफ सेटिस्फैक्शन को कोट्स में कर देता हूँ, इधर लफ्ज़ आ गया ऑथर, ये खुद ही इसने दे दिया जो, ठीक है, कोलन कमर। अब आप देखें कि टोटल आपके पास एक ही रिज़ल्ट बच गया है, जिसमें आप किसी स्पेसिफिक ऑथर के अगर वो ढूंढना चाह रहे हैं, आप उस ऑथर का नाम दे दें, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि नहीं, कमर ने तो कोई इस पर ज़्यादा काम नहीं किया, आप कह देते हैं कि जनाब स्मिथ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। और अब ये देखें, ये स्मिथ के लिखे हुए आर्टिकल आ गए हैं, जिस चीज़ के लफ्ज़ ऑथर में स्मिथ का नाम है और लाइफ सेटिस्फैक्शन पे सर्च हुई है, ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपके सामने आ गए। इसी तरह आप दोबारा एडवांस सर्च ऑप्शन में जाएं, आप यू कैन स्पेसिफाई डेट्स हियर फॉर एग्जांपल। आप इसलिए कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं मेटा एनालिसिस, यानी ऐसा
ऐसी स्टडी जिसमें पिछली स्टडीज को समराइज किया होता है, रिसर्च स्टडीज। आप कहते हैं मेटा एनालिसिस प्रोएक्टिव बिहेवियर, राइट, और बिहेवियर, लेट्स डू इट दिस वे। आप कहते हैं मेटा एनालिसिस प्रोएक्टिव बिहेवियर पे जो हुए हैं वो मुझे पता चल जाए, ये क्योंकि मेटा एनालिसिस ये होता है कि बहुत सारी डिफरेंट स्टडीज को कंबाइन कर देता है, राइट, और आपके लिए आसान हो जाता है ये पता चलाना कि अब तक लिटरेचर में कितनी चीज़ें स्टडी हो चुकी। अब ये मैंने लिखा है तो मेरे पास कितने हैं, 9310 रिजल्ट्स। I mean, still it is very difficult to go through all these 9310 results. So what I do, I go to the advanced search options, right? And I say, no, I only require articles where the word meta-analysis and proactive behavior is in the title of the page, right? And search again. From 9,000 results to, okay, there's not a single one. So let's meta-analysis. Okay, I think we need to maybe proactive behavior. All right. Meta-analysis. So meta-analysis before all in title, so only this part would be in title, right? So now I've got meta-analysis. ये आप देखिए कि मेटा एनालिसिस भी है और जिन लफ्ज़ों में प्रोएक्टिव बिहेवियर जो है वो टाइटल में। नहीं, there's something wrong. I think let's do it again. वो कई दफ़ा ये दोबारा इसे गूगल स्कॉलर को सर्च करें, क्लिक करें, ये मैं दोबारा कर रहा हूँ। मेटा एनालिसिस, अच्छा, proactive behavior, something is wrong with this command. Proactive behavior मैंने लिखा है सर मेटा एनालिसिस में, ठीक है। क्योंकि अब बहुत सारी कई दफ़ा कंबाइन करने की कोशिश करें तो कई जगह पे कोई और रिजल्ट्स इतने इफेक्टिव नहीं आते। डिफरेंट टिप्स कंबाइन करने की कोशिश हम कर रहे थे। मेटा एनालिटिकल रिव्यू ऑफ प्रोएक्टिव, देखता हूँ बोला इसमें कोई रिजल्ट आता है या नहीं। ओके, सो लेट्स से प्रोएक्टिव बिहेवियर पे आप स्टडी करना चाह रहे हैं और आप कहते हैं कि जी मुझे सबसे पहले लेटेस्ट आर्टिकल्स आए, इसलिए मैं इधर दोबारा सर्च पे जा रहा हूँ, एडवांस सर्च, ऑल इन टाइटल मैंने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मुझे 2017 से ऑनवर्ड रिजल्ट्स थे। अगर ऑनवर्ड आपने आज की डेट तक के लिखने हैं तो इसे खाली छोड़ दें, इसमें कुछ ना लिखें, ठीक है, इसे सर्च करें। अब आप देखें कि प्रोएक्टिव बिहेवियर पे वो आर्टिकल जिनके टाइटल पे प्रोएक्टिव बिहेवियर लिखा हुआ है, राइट, 2017 के बाद ये बड़े स्पेसिफिक आपको 163 रिजल्ट्स आए हैं। आप इससे लेटेस्ट लिटरेचर जो है वो स्टडी कर सकते हैं, लेटेस्ट लिटरेचर से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और इधर मैं एक और लफ्ज़ लिखता हूँ कि रिव्यू। हाँ, अब रिव्यू आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जिनमें जर्नली पिछले लिटरेचर का रिव्यू किया हो। तो अब ये फॉर एग्जांपल ये देखें, प्रिलिमिनरी लिटरेचर रिव्यू ऑफ प्रोएक्टिव बिहेवियर 2020, ठीक है, अ रिव्यू ऑफ प्रोएक्टिव सोशलाइजेशन बिहेवियर। तो अब इसने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है डिफरेंट आर्टिकल्स को, तो आपको एक
बना बनाया रिव्यू आपके सामने आ जाता है, जिसमें आपको बहुत सारी टिप्स मिल जाती हैं कि यहाँ तक ऑलरेडी लोग स्टडी कर चुके हैं और ये फर्दर इन एरियाज में आगे मजीद स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो यू कैन यूज़ ऑल इन टाइटल, you can search by a particular author, you can search within a particular journal। ठीक है, आप समझते हैं ये वाला जर्नल मेरे से बड़ा रिलेटेड है, आप इधर जर्नल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, you can search anywhere in the article or in the title of the article, right? और ये बाकी सारी चीज़ें with exact phrase or without, with all the words, right? So you can use all these different commands at the same time. So that is Google Scholar. I mean, there are other sources. You can also search books on the internet, or you can search like different articles. Sometimes if you face any problem in downloading an article, sometimes they are available, they're open access, they're available on ResearchGate. So once you start doing that, right, you would learn different other sources where you can download articles and books, right? Okay, I think we should stop here. So I hope that would give you a fair idea how to conduct a Google search, right? How to use advanced search options and how to make your search more effective, right? So we're going to stop here. If you have any question, you can ask questions, right? So I'm going to stop recording, right? Now, if you have any